Now when the point P of x comma y is in the second quadrant, you know that in second quadrant x coordinate is negative, y coordinate is positive. So sin theta and cosec theta is positive, and cos theta, sec theta, tan theta, cot theta have negative sign. Now when the angle lies in second quadrant, then sin and its reciprocal is positive. Sin का reciprocal क्या होता है स्टूडेंट? कोसेक पॉजिटिव होता है. Tan and cosec positive when angle lies in second quadrant. Now we discuss point P of x comma y lies in third quadrant. We know that in third quadrant x coordinate is negative and y coordinate is negative. थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? x and y both are negative. x नेगेटिव है, इसमें मतलब cos थीटा नेगेटिव है, sin थीटा नेगेटिव है, but tan theta y by x is positive. Minus upon minus, that is plus. When the point lies in third quadrant, then tan is positive. You know that first quadrant में क्या positive है? A all positive. Point lies in second quadrant, yes, sin and its reciprocal is positive. Point lies in third quadrant, tan and its reciprocal is positive. A S T C according to positive sign अगर हम इसको remember करते हैं तो हमें एक relation मिलता है. Now we discuss about the fourth quadrant. When the point lies in fourth quadrant, sorry, y o y dash, x o x dash. Point lies in fourth quadrant. In fourth quadrant x coordinate is positive and y coordinate negative होता है. फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है स्टूडेंट? x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है. x पॉजिटिव मींस cos थीटा इज पॉजिटिव, y negative means sin theta is negative. You always remember that x coordinate is cos theta, y coordinate is sin theta. तो सेकंड क्वाड्रेंट में c पॉजिटिव होता है, cos पॉजिटिव होता है, बाकी फिर sin, cosec, tan, cot आर नेगेटिव. ये बाकी सब क्या होता है? नेगेटिव. तो स्टूडेंट इसको हम ध्यान में रखते हैं ASTC रूल से. ASTC rule is regarding with the positive sign of trigonometric ratios in different quadrants. ASTC, there are 4 quadrants, and associated with 4 quadrants there are 4 letters. A means all positive, all trigonometric ratios positive. S means second quadrant, sin positive. T means tan positive. C means cos positive. हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और 2 क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है. साइन की बात करें तो साइन फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है. टेन की बात करें तो टेन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव है. अगर आप कॉस के बारे में सोच रहे हैं देन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है. This is about ASTC rule. ASTC rule means after school to college. After school to college. ASTC rule. ध्यान में रखने के लिए इजी है स्टूडेंट्स. ASTC rule. Now this is about the signs of trigonometric ratios in different quadrants.
cos is negative, tan सेकंड एंड फोर्थ में निगेटिव होता है, cos सेकंड एंड थर्ड में निगेटिव होता है। देखो साइन फर्स्ट सेकंड में पॉजिटिव होता है, थर्ड फोर्थ में निगेटिव होता है। कॉस के बारे में सोच रहे तो कॉस फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है, सेकंड थर्ड में निगेटिव होता है। टैन के बारे में सोच रहे, टैन फर्स्ट एंड थर्ड में पॉजिटिव होता है, सेकंड और फोर्थ में निगेटिव होता है। कॉस हो गया, साइन हो गया, टैन हो गया। दिस इज अबाउट द ASTC rule. Now the next point is सर समीर ने वर्डिंग्स दी सर उसको ASTC रूल। समीर ने वर्डिंग्स दी सर उसको ASTC रूल को। ओके क्या वर्डिंग दी समीर? ऐड शुगर टू कॉफी, ये भी चलेगा। यस, ऐड शुगर टू कॉफी, ये भी चलेगा। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ये भी चलेगा। ASTC, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। कोई भी एक चीज से आप इसको रिमेम्बर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नाउ वी डिस्कस अबाउट द रेंज ऑफ फंक्शन। Range of function, that is cos theta and sin theta. Here student, P of x comma y is a point on the unit circle अरे तुम्ही बंद केलं का रे? तुम्ही व्हॉट्सअप सर, ऋषिकेश सर चालू है ना? हाँ ओके। Here student, P of x comma y is a point on unit circle, major angle XOB is theta, major angle AOB is theta, and OP is 1. We discuss about the स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल मींस जिसका सेंटर एट ओरिजिन होता है एंड रेडियस 1 यूनिट होता है। OA lies along positive x-axis and OB intersects a circle at point P. OP की लेंथ 1 है और AOB थीटा है। तो स्टूडेंट्स मेजर एंगल AOB थीटा है, OP 1 है, तो देयरफॉर P के कोऑर्डिनेट्स अगर x, y है तो PM परपेंडिकुलर रखिए, OM x है, PM y है। x² + y² = 1 आएगा। AOMP राइट एंगल ट्रायंगल है। इस सर्कल में OMP इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें x² + y² = 1। Therefore, sum of square of x and y is 1. Then x² is less than or equal to 1, and y² is also less than or equal to 1. Taking square root on both sides, therefore -1 is less than or equal to x,
is less than or equal to 1, and minus 1 is less than or equal to y is less than or equal to 1. X is, you know that x is cos theta. Minus 1. Sir, upward. Okay. Minus 1 is less than or equal to cos theta is less than or equal to 1, and minus 1 is less than or equal to sin theta is less than or equal to 1. मीन्स इसका मतलब ये है कि साइन थीटा और कॉस थीटा की जो रेंज है वो -1 to +1. इसका मतलब व्हाट इज मीन बाय रेंज का मतलब क्या होता है? थीटा इक्वल्स टू अगर कोई भी सेट ऑफ रियल नंबर लेते हैं, रेंज का मतलब समझ लीजिए, थीटा बिलोंग्स टू आर, थीटा की वैल्यू आप 30 डिग्री ले लो, 60 ले लो, 90 ले लो, 360 ले लो, 1000 ले लो, 5 लाख ले लो. जिनका यहाँ पे विजिबिलिटी प्रॉब्लम आ रही है वो यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं. ऋषिकेश यहाँ पे क्लियर है. काय पाहिजे असेल तर दे तिला. दाखव की मग तिला सगळं. Range means सर ओके था सर. रेंज मीन्स अगर थीटा की वैल्यू आप एनी रियल नंबर ले लो तो आने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू -1 और +1 के बीच में ही रहती है. साइन 360 समझो फॉर एग्जांपल, साइन 30 1/2 है जो लेस देन 1 है. साइन 60 √3/2 है जो कि लेस देन 1 है. साइन 90 1 है. उसी तरह से साइन 180 0 है. साइन 270 -1 है. साइन 360 0 है. इसी तरह से जैसे जैसे एंगल बढ़ते जाता है और वैल्यू जो रिपीट होती है दैट इज -1 to +1. -1 to +1 के बीच में क्या होना है? 0 -1 +1. तो साइन फंक्शन का रेंज है -1 to +1. मीन्स आने वाली वैल्यू जो है साइन और कॉस की वो -1 और +1 के बीच में रहती है. नाउ वी डिस्कस सम examples which makes a practice of sines of following angles. Find the sines. Sines means it may be positive or negative of the following. Number 1 है sin 300 डिग्री. 300 डिग्री 300. cos 400 है. थर्ड है cot -206 डिग्री. Dear students, पहला है sin 300. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है
0 to 90 होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट 90 to 180 होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट 180 to 270 होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है 270 to 360. 300 means lies in third quadrant. और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसे होता है स्टूडेंट्स? तो यू रिमेम्बर ASTC रूल, ASTC, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में 300 डिग्री लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, 270 से बड़ा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। ASTC रूल के अनुसार फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो साइन 300 क्या होगा? नेगेटिव होगा। साइन 300 डिग्री नेगेटिव। नंबर 2 है cos 400, देखते हैं अभी। cos 400 देखो, एक कंप्लीट सर्कल 360 plus 40. cos 400 can be written as cos of 360 plus 40. 360 plus 40 means फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया ये ASTC रूल अनुसार फर्स्ट क्वाड्रेंट में 400 मीन्स 360 का कंप्लीट सर्कल होता है प्लस 40, तो लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल पॉजिटिव होता है, तो cos 400 डिग्री पॉजिटिव, cos 400 डिग्री इज पॉजिटिव। नेक्स्ट देखो cot ऑफ -206 डिग्री, प्रैक्टिकली देखो, निगेटिव एंगल मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो। प्रीवियस एग्जांपल में हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, अभी देखो क्लॉकवाइज में मूव करेंगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट 90, 180 और 206 मीन्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। -206 है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। नेगेटिव साइन है इसलिए हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन लिया, एंड माइनस cot of -206 degree lies in second quadrant, and you know that in second quadrant sign is positive, so cot -206 is negative. Cot -206 is negative. This is about the science of trigonometric functions. Now we discuss the trigonometric functions of standard angles. Trigonometric functions of
of standard angles. Ratios are sine, cos, tan, cot, sec, cosec. इसमें एंगल है 0 डिग्री, 30 डिग्री और π/6 रेडियन, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड लास्ट वन 360 डिग्री। अगर इसमें आपको 3 वैल्यूज मालूम है तो पूरा टेबल आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसका आपको ये रिमेम्बर करने के लिए ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत नहीं। 45 मीन्स π/4, 60 मीन्स π/3 रेडियन, 90 मीन्स π/2 रेडियन, 180 मीन्स π/रेडियन, 273 π/2 radian, 362 pi radian. This is about in degrees and radians. इसमें अगर आप ये 3 ही वैल्यू मालूम है, sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/2, sin 60 √3/2 एंड sin 91। अगर ये 5 वैल्यूज आपको ध्यान में रहते तो पूरा हम टेबल कंप्लीट करते हैं। इसके यूज से आपको सिर्फ 5 वैल्यू ध्यान में रखना है। sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/2, sin 60 √3/2, sin 90 1। मैं इसके स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा आपको। हियर स्टूडेंट्स, जो साइन की वैल्यू कॉस के लिए रिवर्स होती है, जो साइन 90 है वो कॉस 0 की होती है, जो साइन 60 की है वो कॉस 30 की है, जो साइन 45 की है वही कॉस 45 की है, जो साइन 30 है वो कॉस 60 की है, जो साइन 0 की है वो कॉस 90 की है। हमने क्या किया, इसको रिवर्स किया। जो वैल्यू साइन की है उसी को हमने रिवर्स किया तो कॉस की वैल्यू बनती है। अभी देखो, tan कैन बी रिटन एज साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस को tan लिखते हैं, 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2 1/√3, 1/√2 अपॉन 1/√2 1, √3/2 अपॉन 1/2 √3, 1 अपॉन 0 इंफिनिटी। चालू राहू दे ना, म्यूट करू नको। खूप आवाज आहे,
चालू करो। देखो कॉट को आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक tan को रिवर्स करो, नहीं तो cos अपन साइन करो। कॉट कैन बी cos अपन साइन, नहीं तो कॉट को tan को रिपीट भी कर सकते हैं। tan के रिवर्स इंफिनिटी, √3, 1/√3 और 0। sec can be written as 1 upon sin, sin का रेसिप्रोकल 1/0 इंफिनिटी, 1/1/2 2, 1/1/√2 √2, 1/√3/2 that is 2/√3, 1/1 is 1. Okay, sin sec 1 upon cos a, sorry, sec can be written as 1 upon cos and cosec can be written as 1 upon sin. Cos 1/1 ये होगा 1, 1/√3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का 1/√2 और ये 1/2 और ये 1/0 इंफिनिटी। नेक्स्ट cosec is the reciprocal of sin, 1/0 infinity, 1/2 2, 1/1/√2 1/√3/2 2/√3, that is 1. तो स्टूडेंट 0 डिग्री और 180 की वैल्यू सेम होती है, 0 and 180 सेम, ओनली साइन इज अपोजिट। जो क्योंकि देखो 0 डिग्री इधर होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से और 180 निगेटिव एक्स एक्सिस से होता है, तो दोनों की वैल्यू सेम होती है, साइन अपोजिट होता है। साइन 0 ये भी 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 है तो कॉस 180 की -1 होती है, ओनली साइन अपोजिट। tan 0 की जो है साइन अपोजिट 0 का निगेटिव 0 है, कॉट 0 की इंफिनिटी है तो 180 की भी इंफिनिटी है, सेक 0 की 1 है तो सेक 180 की -1 है, कोसेक 0 की इंफिनिटी है तो कोसेक 180 की इंफिनिटी। इसी तरह से 90 डिग्री एंड 270 डिग्री आर सेम वैल्यूज विथ अपोजिट साइड, क्योंकि 90 डिग्री अबव एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस एंड 270 डिग्री नेगेटिव एक्सिस। ये 90 है, ये 270 है, तो वैल्यूज आर सेम, ओनली साइन इज अपोजिट। साइन 90 की 1 है तो साइन 270 की -1 है, साइन 90 cos 90 की 0 है तो ये भी 0 ही है, tan इंफिनिटी है तो ये भी इंफिनिटी है, cot 90 की 0 है तो ये भी 0 है, sec 90 की इंफिनिटी है तो ये भी इंफिनिटी है, cosec 90 की 1 है तो cosec 270 की -1 होती है, एंड 0 डिग्री एंड 360 सेम पोजीशन है, एंगल 0 भी होता है और 360 भी होता है। 0 डिग्री भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ही है और 360 डिग्री भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ही है, तो जो वैल्यू 0 की है वही 360 की भी होती है विथ सेम साइन। साइन 0 है 0 तो साइन 360 भी 0 होगी, cos 0 1 है तो cos 360 1 होगा, tan 0 0 है तो tan 360 0 है, cot 0 0 है तो cot 360 इंफिनिटी है, sec 0 1 है तो sec 360 1 है, cosec 0 इंफिनिटी है तो cosec 360 भी इंफिनिटी है। sec 60 की cos 60 की हाफ है तो sec 60 उसका रेसिप्रोकल 2 होगा,
This is about the table of values of trigonometric functions. Less than 1 second, sir. 1 minute. Okay, sir. Okay. Please rejoin all. Please rejoin all. Immediately I will open the session. 9:50 झालेत, कोणाला वाटायला